Hello children and welcome to today's class. We all are living beings. आप, मैं, हमारे pets, हमारी pet fish, हमारा pet dog, हमारा pet parrot. We all are living beings. And we also have plants in our balcony, gardens, etc. What are these? These are all living beings. लिविंग बींग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. नाउ ऑल दीज लिविंग बींग्स टुगेदर फॉर्म the life around us. These living beings are dependent on each other. हम plants पे dependent हैं, plants हम पे dependent हैं. Similarly, living beings are also dependent on air, water, etc. अब air और water तो living thing नहीं है, तो फिर ये क्या है? And can animals, plants and human beings live without each other, live without air and water? These are some of the questions that we are going to answer in this chapter. Let us first understand the variety of living things that are there on earth. So we all know that there are plants and animals, and we also know that plants and animals differ from each other in feeding habits, in habitats, in size, color and so many things. जहाँ पर एक एलिफेंट इतना ह्यूज होता है, वहीं पे there are माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको देखने के लिए वी नीड अ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप. सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. नाउ व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स? बहुत अजीब सी बात है कि हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. कैन देयर बी समथिंग कॉमन बिटवीन द टू? यस, देयर कैन बी. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में एक कॉमन चीज है. हमने पढ़ा है दैट लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी सेल्स. डिफरेंट टाइप के सेल्स ज्वाइन करते हैं, टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी. सिमिलरली अगर एक चौक के पीस को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो वो और स्मॉल 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 होता जाएगा, और जो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ चॉक है या जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ चॉक इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल. सो दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दैट दे बोथ आर मेड ऑफ वेरी वेरी टाइनी मॉलिक्यूल्स. लिविंग बींग्स के अंदर इन मॉलिक्यूल्स को सेल बोलते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर इन्हें मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. So, in totality, living things also occupy space, non-living things also occupy space. Now, what are the differences between living and non-living things? This I am sure आप बहुत जल्दी बता सकते हैं. So, we know that growth, intake of food, excretion, respiration, reproduction, sensitivity towards touch, light and heat. These are the characteristics that are shown by living beings. ये कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग बींग्स में नहीं होते. अब अगर हम लिविंग बींग्स के इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके पढ़ें, सो वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स. वी ऑल नो दैट लिविंग थिंग्स डू नॉट रिमेन of the same size all the time. They keep growing in size, whether it is the growth of a seed to a huge plant, or it is the growth of an egg into a adult cock, or it is the growth of a tiny puppy into a full grown dog. सब cases में size increase होता है. The second thing is living beings move. We know that birds fly, we know that animals have got different modes of movement, we know that human beings walk with the help of our legs. So all human beings walk from one place to another. Living things also reproduce. As we all know, हर organism की different life cycle होती है. जैसे कि hen की life cycle के अंदर adult hen egg lay करती है. जो छोटा सा बेबी होता है वो एग के अंदर फुली फॉर्म होते ही शेल ब्रेक करके बाहर आ जाता है, एंड देन इट गोज इनटू अ hen. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स सीड प्रोड्यूस करते हैं. प्लांट्स रूट, स्टेम और लीव्स से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, which we have learnt in our junior classes. Now, plants also respond to touch.
The way human beings respond to heat and cold, animals respond to heat and cold, plants also respond to touch. टच मी नॉट प्लांट की लीव्स को टच करते ही क्या होता है, लीव्स कर्ल कर जाती हैं. दिस शोज दैट प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू टच. साइंटिस्ट ने ये भी प्रूव किया है कि अगर आप प्लांट्स के आसपास बहुत सॉफ्ट म्यूजिक लगा दें तो प्लांट्स की ग्रोथ इन्हांस होती है. दैट मीन्स जस्ट लाइक यू, म्यूजिक ऑल्सो हैज़ अ वेरी सूदिंग इफेक्ट ऑन दी प्लांट्स. Plants, just like human beings and animals, also respond to light. वो कैसे, आइए एक वीडियो में देखते हैं. So in this video, we have kept a potted plant on the window that faces the sun. After some days, we are going to notice a major change. We will see that the tip of the plant has turned towards the sun. That means plant also responds to light. This is known as phototropism. इसका मतलब फोटो, लाइट की तरफ प्लांट की मूवमेंट. इसी तरह प्लांट के जो रूट्स होते हैं, दे ग्रो टुवर्ड्स द अर्थ. जियो मतलब अर्थ, जियोट्रोपिज्म मतलब रूट्स का अर्थ की तरफ जाना. लिविंग थिंग्स नीड फूड irrespective of whatever size we are, whether we are a huge elephant or a tiny microorganism, we all need food. हमने पढ़ा है that plants prepare their own food by the process of photosynthesis. Animals and human beings depend on plants for food. और क्या categories थी animals and human beings की? Herbivores, that means only plant eating. Carnivores, that means only flesh eating. And omnivores, which means जो plants भी खाते हैं और flesh of different organisms भी खाते हैं. All living things excrete. That means हर living body जो खाना खाती है उसके अंदर खाने के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होता है. प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो है एक्सेस वाटर और ऑक्सीजन, जो वो एक्सक्रीट करता है स्टोमेटा के थ्रू. ह्यूमन बींग्स के अंदर स्किन से निकलती है स्वेट और किडनीज प्रोड्यूस करते हैं यूरिन. लार्ज इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टूल बाहर जाता है. द सेम इज द केस विद एनिमल्स. ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी के अंदर एक वेस्ट है जो हमारे नोज के थ्रू बाहर जाता है. कमिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हमारी बॉडी में हो रहा है, विच मीन्स ऑक्सीजन इज गोइंग इनसाइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग आउट. ये ऑक्सीजन क्या करता है? हमने एक चीज प्रूव की है अपने एक चैप्टर के अंदर कि एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग. एयर के अंदर क्या चीज होती है? ऑक्सीजन. इस ऑक्सीजन से बर्निंग सपोर्ट होती है. तो ये ऑक्सीजन जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं ये हमारे फूड को बर्न करने में हेल्प करता है. फूड को बर्न करने से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी. ये एनर्जी क्या करेगी? ये एनर्जी हमें सारी एक्टिविटीज करने में हेल्प करेगी. वेदर इट इज ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, थिंकिंग ऑफ द ब्रेन, pumping of the heart, walking, talking, writing or anything. We require energy for all the activities. Now, living things have a definite lifespan. All living things that are born have to die. Some grow very old and die, but कुछ का lifespan छोटा होता है and they die early. This is true for plants, animals, human beings and even microorganisms. अब इन सब चीज़ों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, कैटेगरीज के बारे में जो बात कर रहे हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको एक और तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है बाय स्पीशीज. स्पीशीज का मतलब, अब एक डॉग डॉग है, कैट कैट है, एक हेन है और एक ईगल है. हेन और ईगल दोनों बर्ड्स हैं, डॉग और कैट दोनों मैमल्स हैं. डॉग इज वन स्पीशी, कैट इज अनदर स्पीशी. इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं. अब डॉग की भी बहुत सारी वैरायटी होती है लेकिन डॉग्स की जनरल हैबिट्स सेम होती हैं. सिमिलरली कैट्स की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं लेकिन कैट्स की जनरल स्पीशी सेम होती है. सो दीज आर द स्पीशीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ. कमिंग नेक्स्ट टू द फैक्ट दैट देयर आर two more components in our environment. अभी हमने बात की थी
लिविंग की और नॉन लिविंग की। अब हम बात कर रहे हैं बायोटिक की एंड एबायोटिक की। बायो मतलब लाइफ, सो बायोटिक मतलब लिविंग। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक। एबायोटिक मतलब जैसे कि एयर, वाटर एंड soil. We all know that these two are related to each other. वो कैसे? आइए डिटेल में पढ़ते हैं। The first thing is air. Air abiotic है, air non living है, लेकिन एयर के अंदर जो गैसेस होती हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं? ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, and air का blanket which is called atmosphere protects the earth from the heat of the sun. Also air के अंदर gases like nitrogen are important because plants उसको absorb करके खाना बनाते हैं। हाइड्रोजन is important क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं। So we depend on abiotic component air. The next abiotic component is water. वंस अगेन हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, कुकिंग एट्सेट्रा। वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो हमारे बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करता है। वाटर ही हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल को अब्जॉर्ब करके बाहर निकालने में हेल्प करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वाटर की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। जब हमें बहुत तेज गर्मी लग रही होती है हम वाटर पीते हैं एंड दिस वाटर हेल्प्स टू सूद अस। द थर्ड एबायोटिक कंपोनेंट इज नोन एज सॉइल। वी ऑल हैव लर्न्ड प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल के अंदर। सो वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, दैट मीन्स वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल एज वेल। सॉइल के अंदर अर्थवर्म जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो सॉइल ऑल्सो एड्स एज अ shelter for all these organisms. The next component, abiotic component, is called light. The sun is the ultimate source of light on earth. The only organisms that can survive without light are cockroaches, bats and some birds like owls. इनके अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइट के बिना नहीं रह सकता। Let's talk about temperature now. अगर हम पोलर आइस कैप्स की बात करें तो पोलर आइस कैप्स के ऊपर हमें सील्स, पोलर बेयर और पेंगुइन जैसे एनिमल्स मिलते हैं, लायन और टाइगर नहीं मिलते हैं। दिस इज बिकॉज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की टेम्परेचर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। आप एक नीम ट्री को हॉट डेजर्ट के अंदर नहीं उगा सकते, ना ही एंटार्क्टिका के ऊपर उगा सकते हो, बिकॉज इट नीड्स a certain temperature to grow. So temperature is also an abiotic component that decides कि कौन सी life form कहाँ grow करेगी. And the last is fire. Now fire is a source of both heat and light. हमें पता है कि जब अर्ली मैन ने फायर डिस्कवर करी थी, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। उसने कुक्ड फूड खाना शुरू कर दिया। ही वॉज एबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। रेन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता था, बिकॉज रेन और कोल्ड के अंदर वो आग जला के अपने आप को वार्म रख सकता था। सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट similarities and dissimilarities between living things and non-living things. We have also learned the characteristics of living things, the different abiotic and biotic components and the relation between them. Thank you.